ہماری اصل منزل خود انحصاری ہے۔ خود مختاری ہی قوم کی سیاسی اور معاشی آزادی کی ضمانت ہے۔ گزشتہ حکومت نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے، ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار رکھا۔ ہمیں IMF سے جلد $2 ارب مل جائیں گے۔ ہمیں اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اپنانا ہوگا۔ چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان دے کر جائیں۔ کانفرنس کا مقصد ایسے آئیڈیاز سامنے لانا ہے جس سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ پاکستان اب دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا۔ حالات ابھی مشکل ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ سخت معاشی حالات میں بھی وزیراعظم نے غریب عوام کو ریلیف دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ وزیر اعظم کی افغانستان سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ ڈالرز کی بجائے روپے میں درآمد کرنے کی منظوری۔ سستی بجلی پیدا کرنے کے ساتھ قیمتی زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی۔ افغانستان سے درآمد کیے گئے کوئلے کی پاور پلانٹس تک جلد ترسیل یقینی بنائی جائے۔ وزارت ریلوے کو اس ضمن میں تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ درآمدی عمل کو تیز کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ شمالی وزیرستان میں بنو ویسٹ بلاک میں تیل اور گیس کے دریافت شدہ ذخائر، حوصلہ افزا نتائج آنا شروع۔ گیس کی پیداوار میں 2 گنا اضافہ۔ کنویں سے یومیہ 300 بیرل تیل بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ ماڑی پیٹرولیم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی، کئی ملکوں کی جانب سے اعلیٰ ترین میڈلز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مملکت کے اعلیٰ ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل، جنوری 2021 میں بحرین آرڈر، اکتوبر 2019 میں اردن کے شاہ عبداللہ کی جانب سے آرڈر آف ملٹری میرٹ، دسمبر 2018 میں روس کی جانب سے تعریفی لیٹر اور جون 2017 میں ترکیہ کے لیجنڈ آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کا بھارت میں ٹویٹر پر مختلف پاکستانی سفارتخانوں کے اکاؤنٹس تک رسائی کو روکنے پر اظہار تشویش۔ بھارت میں کئی اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عالمی قوانین کی پاسداری یقینی بنائیں۔ اکاؤنٹس تک رسائی کو فوری بحال کر کے آزادی اظہار رائے کے جمہوری حق کو یقینی بنایا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ٹویٹر انتظامیہ سے مطالبہ۔ ملک کی ترقی میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی جیسی، زرعی شعبے میں جدت کا فیصلہ، فصل کی نگرانی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا آغاز۔ اقدام سے کسانوں کو پانی، وقت اور وسائل کی بچت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، ضلع کلگام میں 2 نوجوان شہید۔ امرناتھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت، مختلف اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملکوں کی تنظیم G7 کا جرمنی میں سربراہ اجلاس، بحیرہ اسود میں یوکرینی بندرگاہوں سے آزادانہ غذائی ترسیل کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ روس کی جانب سے بیلاروس کو جوہری وار ہیڈ کے حامل میزائل سسٹم کی فراہمی پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ کم آمدنی والے ملکوں کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے $600 ارب فراہم کرنے کا وعدہ۔ یوکرین کے شہر میں ایک شاپنگ مال پر روسی میزائل حملہ، 16 افراد ہلاک، 59 زخمی۔ یوکرین کے صدر نے روسی حملے کو یورپی تاریخ کا بدترین حملہ قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ دمیٹرو کلیبا نے اتحادیوں سے مزید بھاری ہتھیاروں کی فراہمی اور روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
अमरीकी रियासत टेक्सास में ट्रॉलर में से 46 तारकीन वतन की लाशें बरामद। तिब्बी हुकाम के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल किए गए 16 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार बने। ट्रॉलर शहर के जुनूब मगरबी इलाके में रेलवे ट्रैक के साथ पार्क किया गया था। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। उर्दन की बंदरगाह अकबा पर एक स्टोरेज टैंक से क्लोरीन गैस का इखराज। 10 अफराद हलाक, 250 से ज्यादा मुतासिर। गैस से भरा टैंकर जिबूती भिजवाया जा रहा था। इलाका मकीनों को घरों में रहने और खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की हिदायत। खुसूसी टीमों का गैस लीकेज से निपटने के लिए ऑपरेशन। अकबा से इनखला के लिए तैयार रवाना, सिविल डिफेंस हुक्काम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हद उबूर कर गया। गर्मी की हालिया लहर आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जुमे से बुध तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। ईद उल अज़हा पर भी मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा सिनारियो बेस मैचेस। पहले मैच का दूसरा रोज पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड में सरफरीकी T20 सीरीज खेलेगी। सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल। मैचेस हिकले ओवर क्राइस्ट चर्च में 8 से 14 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। सरफरीकी T20 सीरीज के बाद कौमी क्रिकेट टीम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस मुकाबले के आगाज से कबल डेनमार्क में जश्न। दारुल हुकूमत कोपनहेगन को पीले रंग में रंग दिया गया। छोटे मॉडल आईफल टावर की भी तामीर। 21 मराहिल और 3,328 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आगाज 1 जुलाई को कोपनहेगन से होगा। गुज़श्ता टूर सिल्वेनिया की तारीख पोगाचर ने जीता था। और सहर अंगेज नजारे। स्कर्दू की हसीन वादी कतपना की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। दरिया, झील, सर्द सहरा, सरसब्ज व शादाब और बुलंद बाला पहाड़। जन्नत नजीर वादी ने सयाहों के दिल मोह लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि खुद इन्हिसारी किसी भी कौम के लिए माशी और सियासी आज़ादी की जमानत है। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर और इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलकर फैसले करने से कौम की तकदीर बदलेगी। टर्न अराउंड पाकिस्तान के लिए हर शख्स को इनफरादी तौर पर अपने अमल में तब्दीली लानी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 14 माह में हमारी तवज्जो ज़रई शोबे की तरक्की, बरामदात का फरोग और दरामदात के मुतबादिल तलाश करना है। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपए में कोयले की दरामद से मुल्क के ज़र मुबादला की $2 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सुपर टैक्स से 230 अरब रुपए हासिल होंगे। ये रकम गैर तरक्याती मद में इस्तेमाल नहीं होगी। हासिल होने वाली रकम मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने, बरामदात का फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। कौम को मुनहसिल कौम उठना होगा अपने ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तलाफात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मज़ीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। अगर ये हमने ना किया तो फिर हम सर्कल्स में घूमते रहेंगे और हमें तारीख़ के औराक में हमारा खुदा न खासा जिक्र भी न मिलेगा।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि टर्न अराउंड पाकिस्तान तरक्की और मुस्बत सोच का नाम है। कॉन्फ्रेंस का मकसद ऐसे आइडियाज सामने लाना है जिससे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। हमारी तरजीह ये है कि हम पाकिस्तान के जोग्राफिये में जो अदम तफावत है तरक्की का, वो इलाके जो पीछे रह गए हैं उनको किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, और वजीर आजम साहब की हदायत की रोशनी में पहली दफा हम एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 20 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है कि इनको 5 सालों के अंदर के डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का फर्क जो है वो खत्म हो सके। वज़ीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है और अगली नस्ल को तरक्की याफ्ता मुल्क देना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क में सियाहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तामीर के जितने भी नुस्खे हैं उनमें कोई नुस्खा रॉकेट साइंस नहीं है, वो सब कॉमन सेंस के नुस्खे हैं, लेकिन उनकी कामयाबी की कुंजी कलेक्टिव एक्शन में है और इसके साथ साथ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन सेंस इंप्लीमेंटेशन में है। अगर हम सब कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ उन तमाम सॉल्यूशंस को जो यहां हॉल में मौजूद हर शख्स के दिमाग में है उन पर अमल पैरा हो जाएं, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान चंद सालों के अंदर दुनिया को दंग ना कर दे। लेकिन इसके लिए हमें पोलराइजेशन से निकलना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारा मकसद अपने पाँव पर खड़ा होना है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पिछली हुकूमत ने पौने 4 साल में 20,000 अरब कर्जा लिया। सख्त मौशी हालात में भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि हमें टैक्स कलेक्शन के मामलात को दुरुस्त करना है। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारों को अपना हिस्सा डालना होगा। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द सेल्फ रिलायंस की तरफ ना सिर्फ लेके जाएंगे बल्कि सेल्फ रिलायंस कर लेंगे। और मुझे इस बात में यकीन है कि अगर 10 साल पाकिस्तान, 10 साल सिर्फ पाकिस्तान और सब चीज़ें छोड़ दे और सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। जितनी दुनिया में ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, अगर जापान ने की है 1940 और 50 और 60 की दिहाई में, उसके बाद कोरिया वगैरह ने की है 70 और 80 की दिहाई में, चीन ने की है 90 की, और पहले इस सदी की पहली दिहाई में 10-10% ग्रोथ की है, 4 गुना अपनी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ा दी है। इस तरह करी थी कि सस्टेनेबल ग्रोथ थी। 10-20 साल के अंदर एक मुल्क जो है वो आराम से मिडिल क्लास हो सकता है। और जिस दिन हम मिनहासिल कौम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हदफ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से आला क्वालिटी का कोयला डॉलर्स के बजाय रुपए में दरामद करने की मंजूरी दी है। इक़दाम से बिजली की सस्ती पैदावार के साथ कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म ने दरामदी अमल को तेज़ करने के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी कायम की। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मुतल्लिका इदारे मौसर निज़ाम वज़ा करें ताकि मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करके घरेलू सार्फिन और सनतों को रिलीफ पहुँचाया जा सके। उन्होंने बैनुल अक़वामी मंडी में कोयले की बढ़ती हुई कीमत को पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने का बुनियादी सबब करार दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत रेलवे को हिदायत की कि अफगानिस्तान से दरामद किए गए कोयले की पावर प्लांट्स तक जल्द तरसील को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि इब्तदाई तौर पर साहिवाल और हब पावर प्लांट्स के लिए दरकार कोयले की अफगानिस्तान से दरामद पर सालाना 2.2 अरब डॉलर से ज़ायद बचत होगी। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में बनू वेस्ट ब्लॉक में तेल और गैस के दरियाफ्त शुदा ज़खायर के हौसला अफजा नताइज आना शुरू हो गए हैं। कुएं से इब्तदाई तौर पर हासिल होने वाली गैस की मिकदार चंद ही दिनों में 25 से बढ़कर 50 MMCFD हो गई है, जो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी कुएं से हासिल होने वाली गैस की सबसे ज्यादा मिकदार है। कुएं से योमिया 300 बैरल तेल भी हासिल किया जा रहा है। माड़ी पेट्रोलियम के हुक्काम का कहना है कि बनू ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन वसाइल से भरपूर इस्तेफादे के लिए तेजी से काम जारी है। और पाकिस्तान को नाकाम देखने की ख्वाहिश रखने वालों की हसरतें खाक में मिल गईं।
पाक फौज के सिपह सलार की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का बैनुल अक़वामी सतह पर एक और एतराफ़। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को मुमलिकत के आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ के इस एजाज़ पर देखते हैं मरियम मलिक की रिपोर्ट। तो मैं पहले भी तो पाकिस्तान ने भारत में ट्विटर पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी सिफारत खानों के अकाउंट्स तक रसाई को रोकने पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत में पाकिस्तान के ईरान, मिस्र, तुर्की और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि इन अकाउंट्स के अलावा कई और अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आलमी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। ट्विटर से कहते हैं कि पाकिस्तानी सिफारतखानों के अकाउंट्स तक रसाई को फौरी बहाल किया जाए और आज़ादी इजहार राय के जमहूरी हक को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और फ्रांस ने $107 मिलियन कर्ज मुअत्तल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डिवीजन और फ्रांसीसी सफीर ने दस्तखत किए। ये मुआहदा G20 के कर्जा मुअत्तल करने के इक़दाम का हिस्सा है। यह कर्जा 6 साल की मुद्दत में साल 2 किस्तों में अदा होगा, जिसमें 1 साल की रियायती मुद्दत भी शामिल है। इससे कबल फ्रांस के साथ $261 मिलियन कर्जा मुअत्तली के मुआहदों पर भी दस्तखत हो चुके हैं। अभी आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। यहीं पर कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार ज़रई तरक्की, पैदावार में इजाफे और फसल की मुसलसल निगरानी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बाकायदा आगाज़ किया गया है, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के इस इकदाम से किसानों को पानी, वक्त और वसाइल की बचत होगी। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे शिराज दुरानी। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, ज़रई मईशत के इस्तेहकाम और किसानों के अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शोबे में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर था। ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मट्टी की सेहत, ज़ेर ज़मीन नमी की सतह और खेत की असल हालत बारे मालूमात बआसानी हासिल की जा सकेंगी। गैर रिवायती तरीक़े काश्तकारी की मदद से स्प्रे, खाद और अद्वियात के छिड़काव के मुनासिब अमल को मुमकिन बनाया जा सकेगा। इन ड्रोन्स के थ्रू हम स्प्रेइंग सर्विसेज, हर तरह की खाद, सीड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। 90% पानी की भी बचत करते हैं और ये टाइम की भी बचत है और एक प्रिसिजन है, एक कंसिस्टेंसी है जिसके साथ वो स्प्रे होता है। मुल्तान में कपास के विफाकी तहकीकाती इदारे ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जदीद इस्तेमाल से कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के पहले मरहले में मकामी किसानों, ज़रई ग्रेजुएट्स और मीडिया के सामने अमली मुजाहरे का एहतमाम किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी, जहाँ पे खाद की ज़रूरत होगी ये वहाँ पे जाके उतनी क्वांटिटी खाद डालेगा, जिस जगह पे जिस कीड़े के लिए कोई स्प्रे की ज़रूरत होगी ये इंसेक्टिसाइड वहाँ पे उसी मिकदार में मुहैया करेगा। इंसानी आबादी और पैदावारी लागत में बतदरीज इजाफे के बाद फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा भी वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि वतन अजीज़ को खुराक की किल्लत के चैलेंज से महफूज रखा जा सके। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने ट्वीट में कहा है कि IMF से आज सुबह 7वीं और 8वीं जायज़े के सिलसिले में माशी और मालियाती पॉलिसियों के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त का मुसव्विदा मौसूल हो गया है। माशी और मालियाती पॉलिसियों के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त का मुसव्विदा मौसूल होने से IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की राह हमवार हो गई है। मुसव्विदा दोनों फरीकों के माबैन तय पाने वाले फैसलों, पॉलिसी इक़दामात और इस्लाहात पर मबनी दस्तावेज है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर मसूद खान कहते हैं कि अमेरिका के साथ सेहत के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस शोबे में मजबूत शिराकतदारी से तिब्बी सहूलियात का दायरा वसी किया जा सकता है। मारूफ अमरीकी दरसगाह जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी में शोबा सेहत से मुतल्लिक 80 बैनुल अक़वामी तलबा से खिताब करते हुए मसूद खान ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन सेहत के शोबे खुसूसन फार्मास्यूटिकल, अमराज की तशख़ीस, शोबा सेहत में दो तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से मुनज़्ज़म डायलॉग जारी है।
فارماسیوٹیکل سیکٹر کے فروغ کے لیے امریکی فارما کمپنیوں کو شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران امریکہ کی جانب سے 62 ملین کورونا ویکسین کا سب سے بڑا عطیہ دینے پر مشکور ہیں۔ اس موقع پر جانز ہاپکن میں زیر تعلیم پاکستان طلبہ نے بھی سفیر پاکستان سے ملاقات کی۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کولگام کے نواحی علاقے میں محاصرے و تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے وادی اور جموں کے مختلف اضلاع میں تلاشی کی کارروائیاں کی اور چھاپے مارے۔ قابض انتظامیہ نے امرناتھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے نام پر سری نگر جموں ہائی وے پر پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ فوجی اہلکار گاڑیوں اور مسافروں کو تنگ کرنے کے لیے سخت تلاشی لے رہے ہیں۔ حریت قیادت نے G20 ممالک سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر میں کانفرنس کے انعقاد کے ذریعے عالمی ادارے کی ساکھ کو مجروح نہ کریں۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی اور ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل کا کہنا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام جموں و کشمیر پر غیر قانونی تسلط کو جواز دینے کی ایک کوشش ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس نے G20 کے رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ دورے سے قبل مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی منظم پامالیوں کا نوٹس لیں۔ دوسری جانب امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا کہ کشمیری صحافیوں کو خوف و ہراس کا سامنا ہے، جو انہیں دنیا کو مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے بارے میں آزادانہ رپورٹنگ سے باز رکھے ہوئے ہے۔ کئی صحافی بھارتی ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر صحافت کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ہیومن رائٹس واچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں 35 صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے پولیس تحقیقات، چھاپوں، دھمکیوں، جسمانی تشدد یا مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بھارتی حکومت کی ماں پر دلی پولیس نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متنازع بیان کو منظر عام پر لانے والے صحافی محمد زبیر کو توہین مذہب اور اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ دلی پولیس کا کہنا ہے کہ محمد زبیر پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام ہے۔ محمد زبیر کی جانب سے گزشتہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نپور شرما کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازیبہ بیانات کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سچ کی آواز کو گرفتار کرنے سے 1000 مزید پیدا ہوں گے۔ ظلم پر سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ناظرین، خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے۔ روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی، سیاسی، تجارتی، کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں، جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے، گھر بھر کے لیے انصاف کے طلبگار بنیے، روزنامہ انصاف پڑھیے۔ زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے، گھر بھر کے لیے انصاف کے طلبگار بنیے، روزنامہ انصاف پڑھیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔
बकिया खबरों में आपको बताएं कि दुनिया के 7 बड़े सनती मुल्कों की तंजीम G7 ने रूस से मुतालबा किया है कि आलमी ग़िज़ाई बहरान से बचने के लिए यूक्रेन से अनाज की तरसील की इजाज़त दे। जर्मनी में होने वाले सरबराह इजलास के मौके पर मुश्तरका बयान में कहा गया कि रूस बगैर किसी शर्त के ज़रई और नकलो हवल के बुनियादी ढांचे पर अपने हमले बंद करे और बहीरे अस्वद में यूक्रेनी बंदरगाहों से आज़ादाना ग़िज़ाई तरसील को यकीनी बनाए। इजलास में रूस की जानिब से बेलारूस को जौहरी वॉर हेड के अहामिल मिज़ाइल सिस्टम की फराहमी के मंसूबे पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास से वर्चुअल खिताब में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों से यूक्रेन को जंगी तैयारे देने के साथ रूस के लिए फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद करने की दरख्वास्त की। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की तरफ से जंगी तैयारे भिजवाने को खतरनाक करार देने के बाद ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। G7 सरबराह इजलास में कम आमदनी वाले मुल्कों को माहौलियात से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए $600 अरब फराहम करने का वादा किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम चीन के बढ़ते असरात को रोकने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ को निशाना बनाया है और करीबी रिहायशी इलाकों में धमाकों की गूंज से आवाज़ें आती रहीं, जबकि ये धमाके ऐसे वक्त में किए गए हैं जब जर्मनी में दुनिया की 7 अहम इक़्तिसादी ताकतों G7 के सरबराहान का इजलास जारी है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि पोलैंड की सरहद के करीब दूर दराज शहर लीव पर भी मुतादिद हमले किए गए हैं। अमेरिका रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल फराहम करने का मंसूबा बना रहा है, जिसका बाकायदा ऐलान रवां हफ्ते में किया जाएगा। नसामस सिस्टम दरमियाने और तवील फासले तक जमीन से फजा में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। इस दिफाई मिसाइल सिस्टम के साथ यूक्रेन को दीगर हथियार भी फराहम किए जाएंगे। क्रेमलिन का कहना है कि सदर व्लादिमीर पुतिन आज ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये उनका पहला बैरून मुल्क दौरा है। वो बुध को तुर्कमानिस्तान में सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। वस्ती यूक्रेन के एक शहर में एक पुरहुजूम शॉपिंग मॉल में रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हमले में 59 अफराद जख्मी भी हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में रूसी हमले को यूरोपीय तारीख का बदतरीन हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये शॉपिंग मॉल को हादसाती तौर पर हमले का निशाना नहीं बनाया गया। हमले के वक्त शॉपिंग मॉल में 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि रूस की जानिब से हमला जानबूझकर शॉपिंग मॉल के मसरूफ तरीन औकात में किया गया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने इत्तेहादियों से मजीद भारी हथियारों की फराहमी और रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि रूस को इंसानियत सोज रवैये पर इसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। रूसी हमले के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। अफगानिस्तान में कल लोया जिरगा हो रहा है, जिसके लिए पूरे अफगानिस्तान से तकरीबन 3000 अफराद को शिरकत की दावत दी गई है, जिनमें ज़्यादातर उलमा हैं। अफगानिस्तान के हर गांव से 3 अफराद को शिरकत की दावत दी गई है। लोया जिरगा में कई अहम उमूर, खासतौर पर लड़कियों के स्कूल खोलने के बारे में गौर किया जाएगा। लोया जिरगा 3 रोज तक जारी रहेगा। और चीन के वजीर ख़ारजा वांग शी ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। चीन के वजीर ख़ारजा ने ज़लज़ले में जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और ज़लज़ला मुतासरीन की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान अफगान वजारत ख़ारजा के मुताबिक मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने चीनी हममनसब को बताया कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद मुतासरीन के लिए अद्वियात और खुराक का बंदोबस्त किया गया। अब मुतासरीन को शेल्टर्स और मकानात की तामीर में मदद की ज़रूरत है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन अफगानिस्तान पर पाबंदियों की मुखालफत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान ताजिरों को वीज़ों के इजरा का अमल जल्द शुरू करने और अफगान तलबा को चीन वापस जाने की इजाज़त देने की भी यकीन दहानी कराई। चीन की जानिब से भी अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक चीन से इमदादी सामान लेकर 2 तैयारे आज काबुल पहुंचे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि चीन ने $8 मिलियन का इमदादी सामान भिजवाया है, जिसमें कंबल, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। काबुल में चीन के सफ़ीर ने इमदादी सामान अफगान हुक्काम के हवाले किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इमदाद की फराहमी पर चीन की हुकूमत और सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। नेटो के रुकन मुल्कों का 2 रोज़ा सरबराह इजलास कल से स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होगा। रूस यूक्रेन जंग और इसके तनाजुर में दरपेश चैलेंजेस से निपटना इस इजलास का अहम मौजू है। सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि नेटो ने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरीउल हरकत फोर्स को 3 लाख फौजियों तक बढ़ाने का
فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو ریسپانس فورس کو اپ گریڈ کریں گے، یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں اپنا دفاع مزید مضبوط بنائیں گے۔ اردن کی بندرگاہ عقبہ پر ایک سٹوریج ٹینک سے کلورین گیس کے اخراج سے 10 افراد ہلاک ہو گئی ہیں، جبکہ حکام کے مطابق گیس لیکیج سے 250 زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق کلورین گیس سے بھرا ٹینکر جبوتی بھجوایا جا رہا تھا۔ واقعے کے بعد علاقے کے مکینوں کو گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے اور گھروں کے اندر ہی رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ اردن کی سول ڈیفنس سروس کا کہنا ہے کہ خصوصی ٹیمیں گیس لیکیج سے نمٹ رہی ہیں، جبکہ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق عقبہ سے انخلاء کے لیے طیارے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اردن کے وزیر اعظم نے ہسپتال میں زیر علاج افراد کی عیادت کی۔ پاکستان نے اردن میں عقبہ بندرگاہ پر ہونے والے اس المناک واقعے میں جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اردن میں المناک واقعے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، جام بحق افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں اردن کی برادر عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بندرگاہ عقبہ پر ایک سٹوریج ٹینک سے کلورین گیس کے اخراج سے 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سان انطونیو میں ایک ٹریکٹر ٹریلر کے اندر 40 افراد مردہ پائے گئے ہیں، جبکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے تارکین وطن ہو سکتے ہیں۔ مقامی پولیس کے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس 18 پہیوں والے ٹریکٹر ٹرالر کے اندر 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ٹریکٹر ٹرالر شہر کے جنوبی مضافات میں ایک دور دراز علاقے میں ریل کی پٹریوں کے ساتھ پایا گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر شری لنکا میں سیکیورٹی فورسز نے پیٹرول کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں میں ٹوکن تقسیم کیے، جبکہ ملک کے دارالحکومت کولمبو میں سکولز بند کر دیے گئے اور سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کو کہہ دیا گیا ہے۔ اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ کم ترین سطح پر ہونے کے بعد سری لنکا خوراک، ادویات اور ایندھن کی ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ حکومت نے ملازمین کو آئندہ نوٹس تک گھر سے کام کرنے کو کہا ہے، جبکہ کولمبو اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سکول ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,759 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 333 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے نئے مریضوں کی شرح 2.42% ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت میں 13 ستمبر تک کے لیے توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزارت داخلہ سے رپورٹ آنی تھی، مگر ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر، فواد چودھری، شہباز گل، حلیم عادل شیخ اور شیخ رشید احمد کی ضمانتوں میں 13 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں نیو ایمرجنسی بلاک کے قیام سے لوگوں میں سرکاری ہسپتال پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ رپورٹ کریں گے مختار انجم۔ عام عوام تک علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہاول وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں نیو ایمرجنسی بلاک میں 17 بیڈز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی تعداد اب بڑھ کر 121 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عامر بخاری نے بتایا، ٹوٹل جو ہماری 17 بیڈ کی نئی ایکسٹینشن بنی ہے، اس کے اندر میڈیکل کے 8 بیڈز ہیں، باقی 4 بیڈ اس کے اندر ٹریاج کے ہیں اور 6 بیڈ جو ہیں وہ سرجری کے۔ تو بیسکلی 17 بیڈ کی ایکسٹینشن میں ہر وہ مریض جو ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے اس کا جو پہلا آدھا گھنٹہ گزرتا ہے وہ انہی بیڈز کے اوپر گزرتا ہے، اور یہ سارے جو ہیں آکسیجن مانیٹر بیڈز ہیں، وہاں پہ سینٹرل آکسیجن سپلائی بھی اویلیبل ہے، اور جو فرنٹ والے پورشن میں ہے وہاں پر ہم نے ایک پورٹیبل ایکس رے اور پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ بھی دیا ہوا ہے۔ نئے تعمیر شدہ ایمرجنسی بلاک میں مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے لواحقین کے بیٹھنے کے لیے ویٹنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے، جہاں 100 افراد کے بیٹھنے کی سہولت میسر ہے، جبکہ 6 نئے واش روم بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے جو ایک نیا پورشن بنایا ہے، اس کے اندر میڈیکل اور سرجیکل کے بلاکس ہیں اور انیشل ریسسیٹیشن کا ایریا ہے، تو ہر وہ مریض جو یہاں پہ ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے
वो इस नए इमरजेंसी ब्लॉक को पहले टच करता है, उसके बाद यहाँ पे उसको स्टेबलाइज करके हम जो बाकी पुराना इमरजेंसी का पोर्शन है उसमें उसको शिफ्ट करते हैं, या फिर यहीं जो मरीज़ होता है यहीं से डायरेक्ट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कायम होने वाले इस नए इमरजेंसी ब्लॉक में हर तरह की सहूलत फराहम होने से आम लोगों में सरकारी अस्पताल पर एतमाद बढ़ा है, जिससे वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम में 5 रोज के दौरान 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। 25 हसास अजला में तमाम बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी, जबकि बाकी अजला में मखसूस यूनियन काउंसिल में मुहिम होगी। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत के वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया है और इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर और मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी है। उन्होंने कहा कि 25 इजला पोलियो के लिए हसास करार दिए गए हैं। मीरान शाह की तरफ ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और अल्लाह से दुआ है कहीं और भी ना हो बल्कि वहाँ से भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, हमें पोलियो मुहिम पे जोर देने की बहुत ज़रूरत है। वफाकी वजीर ने कहा कि अद्वियात की कीमतें कम करने के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। जो मकामी तौर पर दवाएं बनाने वालों की दवाएं कंपनियां बंद हो रही थी या किल्लत का शिकार हो रही थी, उस वजह से मरीज़ों को जो इम्पोर्टेड दवाएं हैं वो ख़रीदना पड़ रही थी जो कि महंगी होती हैं। तो हम 17 से घटाकर 1% ला रहे हैं, जिसपे वो दोबारा प्रोडक्शन के काबिल हो जाएंगे। पंजाब के 7 इजला में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने लाहौर में यूनियन कौंसिल 83 की कच्ची आबादियों में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब के 7 इजला में 50 लाख से जायद मासूम बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 18 इजला में भी 5 रोजा मुहिम में 12 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए 4,904 टीमें तश्कील दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान पेशावर समेत सूबे के 25 इजला में 5 साल से कम उम्र 25,80,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 11,389 टीमें तश्कील दी गई हैं। अफगान मुहाजिरीन के लिए भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम मर्दान में शुरू हो गई है, जिसमें काकान कैंप, जलाला कैंप और बागीचा कैंप में कुल 3,417 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में भी इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज जारी है, जबकि ज़लज़ले से मुतासिरा सूबा पक्तिका में मुहिम मुअख्खर की गई। अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मरकज के सरबराह डॉक्टर नेक वली शाह मोमिन का कहना है कि पक्तिका के अलावा पूरे अफगानिस्तान में मुहिम जुमेरात तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। और आइंदा माली साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान का 119 अरब 32 करोड़ रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे शेर अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा माली साल के लिए तरक्याती मद में 47 अरब 88 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती बजट की मद में 61 अरब 44 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। गन्नों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब 81 करोड़ रुपए, तरक्याती बजट में एडीपी पर 12 अरब 74 करोड़ रुपए, जबकि वफाकी पीएसडीपी मंसूबों के लिए 10 अरब 73 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बिजली के घरेलू इस्तेमाल में कमी करने के लिए एयर मिक्स मंसूबे का आगाज़ किया गया है, जिस पर जोरों शोर से काम जारी है। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी भी जनाब स्पीकर बुलंद होगा। गिलगित बल्तिस्तान में नॉन टैक्स आमदन का हदफ 3 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि कंटीजेंट पेड मुलाजमीन की कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये करने की तजवीज़ है। सरकारी महकमों के मुलाजमीन को 2022 से 2017 की बुनियादी तनख्वाह का 15% DRA और ग्रेड 20 से ऊपर के मुलाजमीन को 25% DRA देने की तजवीज़ है। बजट में गैर आबाद ज़मीनों के लिए चैनल और रोड की तामीर पर 64 करोड़ 48 लाख रुपए, तामीरात आमा के शोबे के लिए 5 अरब 39 करोड़ रुपए, बरक़ियात के शोबे की तरक्की के लिए 2 अरब 53 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह शोबे तालीम की तरक्की के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए, सेहत के शोबे की तरक्की के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए, जबकि मुकामी हुकूमत व दही तरक्की के लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे के साथ चंद इडहाक रिलीफ अलाउंस को जम करने की तजवीज़ है। बजट में मासवाई मोटरसाइकिल, स्कूल, बस, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों की दीगर गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
गिलगित बल्तिस्तान में असामियों की अपग्रेडेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी ऑफिसरान का मैगज़ीन, अखबारात वगैरह ख़रीदने का इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया गया है। इससे कबल वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बजट की मंजूरी दी गई। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। दरिया, झील, सर्द सहरा, सरसब्ज़ो शादाब और बुलंदो बाला पहाड़ एक साथ एक ही जगह पर। स्कर्दू की हसीन वादिये कतपना की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनस। कतपना स्कर्दू के खूबसूरत और सयाहती मकामात में से एक है। शेर दरिया, दरिया सिंध का बहता हुआ पानी यहाँ से दिखाई देगा और साथ ही साथ चारों अतराफ बुलंदो बाला बर्फ़ से ढके पहाड़ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो सयाह हैं उनका कहना है कि एक ही जगह पे इतने सारे खूबसूरत मनाजिर देखकर वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें एट अ टाइम आपको मिल रही हैं। माउंटेन रेंज भी है और साथ लेक भी है, कटपाना लेक है और दरमियान में कटपाना डेजर्ट है। स्कर्दू काफ़ी अच्छी वैली है, इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत वर्सेटाइल ग्राउंड है। ये डेजर्ट मिल जाता है, ये मीडोज़ मिल जाती हैं। सयाह स्कर्दू जो आए हैं कतपना डेजर्ट और कतपना वैली के साथ साथ यहाँ पे करीब तरीन है कचुरा लेक, शंग्रेला और बशो वैली है, चुंदा वैली है और यहाँ से द्यूसाई का डिस्टेंस भी बहुत करीब है। खरमंग शिखर के लिए भी यहाँ से बहुत सारे सयाह रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, सिब्बी 48 और नकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क भर में शदीद गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए खुशी की खबर यह है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला सिलसिला जुमे से शुरू होने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश मुतवक्के है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मैंडेस की जानिब। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएं कि ब्राज़ील में कोरोना के बायस 2 साल के वक्फे के बाद सकाफती परेड हुई, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में रंगारंग लिबास पहनकर शिरकत की और अपनी मकामी सकाफत को उजागर किया। इस 3 रोज़ा मेले में सुर्ख और नीले लिबास वाली 2 टीमों के दरमियान मुकाबला था और एक मकामी रिवायत के मुताबिक इसमें बैल को भी शामिल किया गया था। हर टीम को मेले में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करना था। हुकूमत दोनों टीमों को तैयारी के लिए माली मुआवनत फराहम करती है। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन कर रही है। तरबियती कैंप में क्रिकेटर्स के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच जारी है। सिनेरियो मैच में कोचेस ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट दे रखे हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड 1 जुलाई तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कैंप जारी रखेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। कौमी टीम 26 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड में सह अफ्रीकी T20 सीरीज खेलेगी। हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च में 8 से 14 अक्टूबर तक खेली जाने वाली सह अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान समेत मेजबान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। सीरीज से ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सीरीज में अपना पहला मैच 9 अक्टूबर को मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि दूसरे मैच में 10 अक्टूबर को बांग्लादेश के बदे मुकाबिल होगा। कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर 12 अक्टूबर को बंगाल टाइगर्स जबकि 13 अक्टूबर को कीवी टीम का सामना करेगी। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। सह अफ्रीकी T20 सीरीज मुकम्मल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैटर शान मसूद ने काउंटी चैंपियनशिप के रवां सीजन में 1000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। वो इस साल ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले खिलाड़ी हैं। काउंटी चैंपियनशिप 2022 में शान मसूद डर्बीशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ससेक्स के खिलाफ मैच की पहली इनिंग्स में उन्होंने 46 रन की इनिंग्स खेली और चैंपियनशिप सीजन में 1000 रन मुकम्मल किए। उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप की 12 इनिंग्स में 1037 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 4 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। शान मसूद रवां साल प्रोफेशनल क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 2000 रन बना चुके हैं। साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस की इफ्तिताही स्टेज के मेजबान कोपेनहेगन में जश्न शुरू हो गया है। डेनमार्क का दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन 21 मराहिल पर मुश्तमिल इवेंट की पहली रेस की मेजबानी करेगा। इनफरादी टाइम ट्रायल पर मुश्तमिल मुकाबला 1 जुलाई को होगा। खुशी में कोपेनहेगन को पीले रंग में रंग दिया गया है। शहर के एक पार्क में आईफल टावर का मॉडल भी तामीर किया गया है। घरों और दरख्तों को भी मुख्तलिफ रंगों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जबकि लकड़ी की बनी साइकिलों की भी नुमाइश की गई है। 23 रोज में मुकम्मल होने वाली रेस में साइकिल सवार 3328 किलोमीटर का सफर करेंगे। गुज़श्ता टूर सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर ने जीता था। खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रखिए।